distance A from origin with a velocity two times the velocity for the circle of radius A show that equation of the path is r cos theta by 2 बराबर A r cos theta by 2 solution सेंट्रल ऑर्बिट का सवाल है तो जान ही रहे हैं, उसी को पढ़ा रहे हैं। A particle moves with an acceleration which varies inversely as the cube of distance. Given acceleration varies as the cube of distance, that is c बराबर म्यू बार आर क्यूब। हर सवाल में देखिएगा एक्सेलरेशन दिया रहता है। If it be projected from an x at a distance a, हर सवाल में आपने देखा होगा दूरी भी दिया रहता है, वेलोसिटी भी दिया रहता है। किस वेलोसिटी से, यहाँ अभी तक जितना सवाल पढ़ रहे थे उसमें वेलोसिटी साफ दिया रहता है, लेकिन इस बार उसने देखिए क्या किया, गिवन वेलोसिटी √2 times the velocity for a circle of radius a। इस बार जो वेलोसिटी है का √2 गुना है वेलोसिटी उस सर्कल पर का जिसका रेडियस a है, यानी वेलोसिटी जो दिया हुआ है √2 गुना v डैश, where v dash is the velocity for a circle
तो साफ ये सवाल में समझ में आ गया होगा कि सबसे पहला काम जो आपको करना है वी क्लियर करना। वी क्लियर हो जाएगा तो सवाल में पहले जैसा हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एक नॉन काम कर दिया है जो आपको क्लियर करना पहले, फिर बाकी कैसे सवाल बनता बनाएंगे। वी किस पर डिपेंड करेगा? वी डैश। वी डैश क्या है? वेलोसिटी फॉर अ सर्कल ऑफ रेडियस a। normal acceleration normal acceleration v square by rho v dash square by rho। सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर उसके रेडियस के बराबर होता है पार्ट 1 नॉर्मल एक्सेलरेशन इतना जो बराबर है सेंट्रल एक्सेलरेशन के म्यू बाय आर क्यूब प्लस ए क्यूब v dash square v dash बराबर म्यू बाय ए। ना v हो गया √2 v डैश v बराबर √2 म्यू बाय ओवरऑल। अब हमारा एक्सेलरेशन सॉरी क्या किया हुआ एक्सेलरेशन म्यू बाय आर क्यूब मतलब दूरी s पर से जो फेंका जा रहा है a वेलोसिटी। अब इस सवाल को देखें, हर सवाल में यही दिया रहता है, आपको बात का समीकरण पूछता है बनाया गया तो एक एक्स्ट्रा वर्क हो गया समझ गए ना। डिफरेंशियल इक्वेशन of path in polar form is d to u by d theta square plus u p by h square v square h square d to u by d theta square p by v square h square omega d omega by du mu u h square omega d omega plus u du
u square by 2 plus c h square mu u square c dash h square du by d theta का whole square plus u square mu u square plus c dash. This is your v square. Velocity है under root 2 mu by a. इस कंडीशन को लगाया जाए 2 mu by square h square mu by a square 2 mu by square h square by square mu by square plus c dash. Two mu by square h square by square h बराबर under root 2 mu taking first and last लेंगे c dash बराबर mu by a square. हर सवाल में इसको लिखते हैं c dash और h निकल गया. Now 1 becomes ये तो हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं सिर्फ काम निकालने के लिए h स्क्वायर का मान du by d theta का होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर नो प्लस c डैश का मान mu by a square. du by d theta का होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 1 by square divided by 2 du by d theta का होल स्क्वायर a square u square plus 1 by 2a square minus u square. du by d theta का होल स्क्वायर 1 minus a square u square by 2a square du by d theta 1 minus a square u square root 2a 1 minus बराबर root 2a इतना du बराबर d theta. du 1 minus au square बराबर
ए डी यू बराबर डी टी बाय, यहाँ पे एक बार अगर u में वो इंटीग्रेबल फॉर्म नहीं लेता तो r में बदलते हैं, अगर u में ले रहा है तो करेंगे जी थीटा dx by under root 1 minus x square sin inverse x sin inverse p gamma au theta by root 2 plus if we measure theta from initial radius vector, then theta 0 u 1 by a sin inverse 1 a बराबर पाई बाय 2। Now 1 becomes sin inverse au pi by 2 plus au बराबर sin au बराबर sin 90 plus थीटा u यानी बन गया a बराबर r cos थीटा by root 2, which is the required, यही लाने दिया था। Next question. A particle moves with a central acceleration mu u5 minus a square by u7, it is projected at the distance a
with velocity to 25/7 times the velocity for a circle at that distance and at an inclination tan inverse 4/3 to the radius vector so that its path is 4r² minus a² 3a² by 1 minus theta का whole square. Solution. A particle moves with central acceleration इतना given p बराबर mu u5 a² by u7 projected at a distance a. देखिए का क्या पर से फेंका जा रहा है सवाल में दिया हुआ तो नहीं दिया हुआ प्रोजेक्टेड एट ए डिस्टेंस है विथ वेलोसिटी भी साफ नहीं दिया वो सर्कल पर के वेलोसिटी का उतना गुना दिया हुआ है तो 25/7 गुना velocity for a circle of radius a where v dash is the velocity for a circle of radius a. तो एक लफड़ा तो उसने यहाँ लगा दिया कि वेलोसिटी साफ नहीं दिया आपको साफ करना है और दूसरा चक्कर ये वाला चक्कर इसके पहले सवाल में भी था इन एक चक्कर और डाला हुआ गैस पर से नहीं फेंक रहा एट एन इंक्लिनेशन दिस इतने एंगल के झुकाव से उसको फेंक रहा है फाई दिया हुआ है tan इनवर्स 4/3 तब आपका समीकरण चाहिए सबसे पहला काम वेलोसिटी क्लियर करना चाहेंगे नॉट
V स्क्वायर बाय। अब प्रश्न अनुसार ये दिया हुआ है म्यू U5 मतलब 1/5 A स्क्वायर बाय U7 मतलब 1/7 V डैश स्क्वायर बाय म्यू V डैश स्क्वायर बाय म्यू A5 V dash square 7 mu by 8 A4 V dash बराबर under 7 mu by 8 A4। अब देखिए वेलोसिटी रूट पर देन V बराबर √25/7 अब गुना V डैश 7 म्यू V बराबर √25 म्यू बाय 8 A4। तो एक ये मामला तो आपने क्लियर कर लिया। दूसरा डॉक्टर यहाँ लगाया हुआ तो एक्स पर से नहीं फेंक रहा है। ना 5 बराबर tan inverse 4/3 tan 5 sin 5 p बैच tan मालूम तो sin मालूम। पार्ट 1 स्मॉल p बराबर r sin 5 जिस बिंदु से फेंका जा रहा है वहां दूरी क्या है a और वहां पर sin 5 का मान क्या है 4/5। तो एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन p बराबर 4a/5। ओवर डेटा को क्लियर कर लें। p कितना था p बराबर म्यू U5 A स्क्वायर बाय 8 U7 दूरी a दिया हुआ है। वेलोसिटी आपने क्लियर कर लिया। कितना था वेलोसिटी √25 म्यू बाय 8 A4 स्मॉल p बराबर 4a/5। ये चीज प्रेश कर लिया आपने। अब पद का समीकरण निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन h square
स्क्वायर 7 by 8 by u square h square omega d omega by du plus u mu u cube a square u 5 by 8. H square omega d omega u du mu u cube du a square 5 by 8 du. इंटीग्रेट करेंगे h square omega square by 2 u square by 2 mu u 4 by 4 a square u 6 by 48 u 6 by 48 plus h square plus u square by 2 तो उधर अगर ले जाए u 4 by 2 a square u 6 बटे 24 2c c dash h square du by d theta का होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर mu u 4 by 2 a square u 6 बटे 24 प्लस इसे आप v स्क्वायर कहते हैं। लौटेंगे तो यही काम करने के लिए इसका नाम v स्क्वायर रखते हैं। h स्क्वायर du by d थीटा का स्क्वायर प्लस u स्क्वायर mu a स्क्वायर 6 बटे 24 v स्क्वायर। यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे क्योंकि जब f पर से फेंका जाता था तो दूरी तो खैर पता रहता था, ये पता रहता था, यहाँ भी पता है। f पर की वजह से ये हमें पता होता था du by d थीटा 0। इस बार उसने f पर से नहीं फेंका तो इसमें तो फंस जाएंगे। तो चले आइए पार्ट 1, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर पार्ट 1, इसका फॉर्मूला 1 बाय ऑनर्स पार्ट 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर के चैप्टर में ये फॉर्मूला हमने प्रूफ किया है। क्यों ऐसा किया, इसको हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि p दिया हुआ है और du by d थीटा पता नहीं, x होता तो du by d थीटा 0 होता तो चेंज करने की जरूरत नहीं थी। mu u 4 by 2 a square u 6 by 24 c dash। तो लौटना तो हमें स्टार पर है, लौटना तो ये 1 पर है। काम करने के लिए अभी हमने इसको 1 को इसमें डाला है तो
वहां क्या लिखते थे बाउंड्री कंडीशन एट एन एक्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे एट द प्रोजेक्शन के बिंदु पर u जो हमारा है 1/r यानी 1/a, v है अंडरवुड 25 म्यू 8a4, स्मॉल p है 4a/5। इस बाउंड्री कंडीशन को यहाँ इंपोज किया गया, v स्क्वायर 25 म्यू बार a4 h स्क्वायर बटे p स्क्वायर का मान 16 a स्क्वायर बटे 25 म्यू u4 का 1/4/2 1/2 a4 माइनस a स्क्वायर u6 का मान 1/6 कटा 1/24 a4 प्लस c डैश 25 म्यू 8a4 25 h स्क्वायर 16 a स्क्वायर म्यू बाय 24 a4 12 माइनस 1 11 फर्स्ट ये दोनों को जब लीजिएगा तो h स्क्वायर बराबर 16 a स्क्वायर म्यू 25 तो कट गया 16 a स्क्वायर म्यू बार 8 a4 यानी 2 म्यू बार a स्क्वायर। पहले और आखिरी जब लेंगे तो c डैश का मान म्यू बार 8a4 माइनस 11 म्यू बटे 24 a4 24 a4 8 24 c डैश हो गया कितना 10 इससे करेंगे इसके लिए 25 है 8 या 24 तो उत्तम हो गया 8 या 24 25 दिया 75 75 माइनस 11 64 8 म्यू बाय 3a4 पहला दोनों लिया सबसे कटा तो ये दोनों लिया c डैश का 25 म्यू बाय 8a4 माइनस 11 म्यू बाय 24 a4 24 से 4 उत्तम हो गया 75 म्यू माइनस 11 म्यू 64 म्यू 64 लौटना कहाँ है 1 हम लोग भी प्रोड्यूस किस लिए करते हैं मान निकालने के now 1 becomes h square का मान du
का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर म्यू u4/2 a square u6/24 c dash का मान 8 μ/3a4 2/a square du/d theta का स्क्वायर u4/2 a स्क्वायर u6/24 प्लस 8/3a4 du/d theta का होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर a square/2 u4/2 a square u6/24 8/3a4 du/d theta का होल स्क्वायर a square u4/4 a 4 u6/48 प्लस 4/3a square माइनस पुट करें du/d theta minus 1/r square dr/d theta minus 1/r square बराबर a square u4 a square u4/4 minus a4/48 u6 का मान r6 प्लस 4/3 स्क्वायर माइनस 1/r स्क्वायर 1/r4 dr/d theta का स्क्वायर a square 4/4 minus a4/48 r6 4/, minus 1/r square 1/4 4/48 और 3 ना 4/48 हो गया 48 तो ये हो गया r6 हो गया और a स्क्वायर छूटा तो ना
12 r square a4 48 r6 a6 3 a square 16 r6 48 a square r4 यह बड़ी थीटा का होल स्क्वायर 64 r6 माइनस a6 माइनस 48 a स्क्वायर r4 प्लस 12 a4 r स्क्वायर बटे 48 a स्क्वायर r स्क्वायर इधर से आपको करना 4r स्क्वायर का क्यूब अगर कर दें 4r स्क्वायर का क्यूब 64 r6 हो गया a स्क्वायर का क्यूब माइनस 3ab a माइनस b 48 देखिए तो ये हो गया 3 चौके 12 चौके 48 r4 a स्क्वायर हो गया और प्लस 12 a4 r स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b का होल क्यूब 48 दिया बड़ी थीटा बराबर 4r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3/2 बटे स्क्वायर बोला है 48 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 a r 3 a r दिया 4r स्क्वायर बराबर d थीटा इंटीग्रेट करें पुट करेंगे 4r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 8r दिया बराबर dt r दिया dt by 8 4√3 को बाहर है r दिया 4√3 a बाहर है r दिया का मान dt by 8 t पर 3/2 d
3a/2 t per minus half by minus half theta plus a minus root 3a by root t theta plus minus by root t 4r square minus a square theta plus a. If we measure theta from initial radius vector, then r बराबर theta c minus root 3a by root 3a k gamma minus 1. Now 2 becomes minus root 3a by barabar theta minus 1 minus root 3a under root minus 3a square 4r square minus a square 4r square 3a square बटे क्या लाना था 4r square minus a square 3a square which is the required part. Required part. चलिए